Welcome students, I am Dr. Alpna Goyal. Today we are going to start with a poem, A Photograph by Shirley Tolson. It is the first poem of your book Hornbill, class 11th. So at first we will discuss the title, A Photograph. As we know, each photograph denotes memories, sometimes happy and sometimes sad. क्योंकि कोई भी फ़ोटोग्राफ किसी स्पेशल ओकेज़न पर कैप्चर की जाती है, तो यहाँ पर we see a picture of sea beach and three girls including the poet's mother. तो यहाँ पर पोइटेस की जो माँ हैं उनकी चाइल्डहुड की कुछ मेमोरीज़ को इस फ़ोटो में कैप्चर किया गया है. तो नाउ वी विल सी द पोएम. The cardboard shows me how it was when the two cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl some 12 years or so. The photograph is pasted onto a piece of mere cardboard. Cardboard means very stiff paper board on which the photograph was pasted. तो here we see कि फोटोग्राफ जो है वो किसी मेटल फ्रेम से सराउंडेड नहीं है, नॉर is it preserved under any protective glass, but it is pasted onto a piece of cardboard. Now we see how it was. Now she describes the where that photograph was captured. Now the poet shares with us the story behind the picture, and now she takes us to the time when her deceased mother had gone to the beach for some paddling. Paddling means walking through shallow water in bare feet. जो बीच के किनारे पैदल वॉकिंग करना, उसी को हम कहते हैं पैडलिंग. तो इस पिक्चर के द्वारा पोइटेस हमें डिस्टेंट पास्ट में ले जाती हैं, जब उनकी माँ शी वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, केवल 12 साल की थी, और जब वो एक सी हॉलीडे पर गई थी अपनी कज़िन के साथ. Each one holding one of my mother's hands, and she the big girl. Poetess says कि her mother was the eldest among all at about 12 years of age. Big girl here. Big girl means mother is referred to as the big girl as she was the eldest among the three girls. जब पोइट की माँ केवल 12 साल की थी तो वो बीच हॉलीडे पर गई थी और उनके साथ 2 कज़िन भी थी, और वो तीनों सिस्टर्स में सबसे बड़ी थी. तो ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. तो द पोइट डिटेल्स कि हाउ ईच ऑफ द सिस्टर्स इज़ होल्डिंग हर मदर्स हैंड. दोनों उनकी जो बहनें थीं वो उनका हाथ पकड़े हुए थी. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. In these lines, the poet describes how her mother's uncle had captured her mother and 2 cousins through a camera at a point when she had a lot of life ahead of her. जब वो केवल 12 ईयर्स ओल्ड की थी और जब सी बीच पर गए थे तो उनके अंकल ने उनका एक फ़ोटो कैप्चर किया था. All the 3 stood still, और mother and her 2 cousins, they were standing still. Still means without moving or shaking, because they were posing for a photograph. क्योंकि वो एक फ़ोटो खिंचा रही थी, तो वो तीनों की तीनों
एकदम स्टिल खड़ी हुई थी. They were smiling through their hair. Smiling through their hair. We can see this picture कि जब वो मुस्करा रही थी तो through their hair means उस टाइम उनके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे. तो इसे इंडिकेट होता है कि शायद उस समय बीच पर बहुत तेज़ हवा थी. Now the poet describes her mother's face as one full of sweetness. A sweet face, my mother's, that was before I was born. When the poet was not born, जब उसकी माँ केवल 12 साल की थी तब उनका चेहरा बहुत प्रिटी था, बहुत स्वीट था. और ये तो हम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं तो वी आर वेरी इनोसेंट, वी आर वेरी प्रिटी, एंड एज वी ग्रो तो बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं लाइफ में. जैसे जैसे हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हैं, जैसे जैसे लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारे जो फेस होता है वो भी चेंज होता जाता है. नाउ she describes, see, which appears to have changed last was their terribly transient feat. Now the poet shifts her poetic gaze onto the sea and casually remarks on how the endless water body has not changed much over time, which appears to have changed less. Means इतने लंबे समय में जो ओशन है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं. तो here we can see the permanence and unchanging quality of sea. तो सी कैसा है? परमानेंट है, इट डजंट चेंज. एंड ह्यूमन लाइफ कैसी है? ह्यूमन लाइफ इज टेम्पोररी. तो यहाँ पर ह्यूमन लाइफ को कंपेयर किया गया है सी से. तो सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. और इस फोटोग्राफ में वी कैन सी कि जो सी वाटर है दैट वाज वॉशिंग 3 sisters फीट. और जो फीट हैं वो कैसे हैं? टेरिबली ट्रांजिएंट फीट मीन्स, टेरिबली मीन्स एक्सट्रीमली, ट्रांजिएंट मीन्स टेम्पोररी, लास्टिंग ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम. ओवर हेयर तो जो हमारा ट्रांजिएंट वर्ड है, ट्रांजिएंट is an adjective और it modifies feet. देखिए यहाँ पर जो गर्ल्स के फीट हैं उनको ट्रांजिएंट कहा गया है कि टेम्पोररी, because it is their own lives that are temporary due to the universal reality that every living being has a self life with its time cut out on earth. कि जो भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी लिविंग पर्सन है तो उसका एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है. कोई भी पर्सन जिसने बर्थ लिया है, ही विल पास थ्रू दीज फेजेस. ही विल बिकम अ चाइल्ड, यंग एज, ओल्ड एज एंड अल्टीमेटली ही विल डाई. तो ये फेजेस हैं लाइफ के. और मतलब nothing is permanent. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both ride with the labored ease of loss. Now in these lines, the poet talks of a time 20 to 30 years later when the mother would show the photograph to her daughter. जब उसकी मम्मी उसको फ़ोटो दिखाती थी पोइट को,
तो शी यूजुअली लाफ्ड, शी वुड पॉइंट एट हर कजिन्स, सी बेटी एंड डॉली, कि बेटी एंड डॉली उसकी कजिन्स हैं, और वो पोइट की माँ पोइट से कहती थी कि देखो, लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि देखो हमारे पेरेंट्स ने, दे मीन्स कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बीच के लिए भी कैसे तैयार किया था। तो अपेरेंटली दिस कैजुअल लाफ्टर हैज़ ए डीप मीनिंग, कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो समय के साथ साथ हम मैच्योर हो जाते हैं, और जब कभी हम अपने पुराने फ़ोटोज़ को देखते हैं तो हम बहुत स्ट्रेंज फील करते हैं कि ओ हम ऐसा करते थे, हम ऐसे रहते थे। तो जैसे यहाँ पर बताया कि सी इज़ वेरी सरप्राइज कि उनके पेरेंट्स ने बीच के लिए भी उनको इतनी अच्छी तरह से ड्रेसअप किया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन। The sea holiday was her past, mine is her laughter. So the poet describes two pasts through this photograph, one of mother's and one of hers. तो उसकी माँ जब भी उस फोटोग्राफ जो सी हॉलीडे पर कैप्चर किया गया था को देखती थी तो उनको अपने यूथफुल हैप्पी डेज याद आ जाते थे। और तो ये तो उनकी माँ का पास्ट हो गया कि जब उनको सी हॉलीडे की पिक देखने से अपने दिन याद आ जाते थे कि जब वो एक छोटी सी बच्ची थी, जब वो बहुत खुश थी, केयर फ्री थी। और एक पास्ट कौन सा है, माइन इज़ हर लाफ्टर, जब उस फोटो को देखते टाइम उनकी माँ के चेहरे पर जो हंसी होती थी, उनकी माँ के चेहरे पर जो हंसी होती थी तो उसको देखकर पोइट भी हंस जाती थी। तो इस फोटो के साथ दोनों के पास्ट जुड़े हुए हैं, पोइट की माँ का पास्ट और पोइट का पास्ट। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट हियर कि हाउ बोथ पास्ट प्रेजेंटेड इन द पोएम हैव लाफ्टर एंड हैप्पीनेस इन देम। नाउ वी कम टू दिस लाइन, both try with the labored ease of loss. Both means mother and the poet. First mother, second poet. Both Rai means disgusted, disappointed. Both try with the labored ease of loss. So but Rai means disappointment, and both mother and the poet both were sad over their loss. दोनों ने ही कुछ खोआ था और दोनों ही उस चीज़ के खोने पर दुखी थी। तो माँ ने तो क्या खोया था, अपना बचपन, और पोइट ने क्या खोया था, माँ को। तो the expression represent the difficulty. Labored means achieved after a lot of hard work done with great effort. Ease means comfort. तो यहाँ पर जो आपका एक्सप्रेशन है, labored ease of loss, expression represent the difficulty and struggles one has to go through to arrive at a point where accepting loss and death becomes possible and a part of our daily lives. तो दोनों ने ही, उसकी माँ ने भी और पोइट ने भी उस लॉस को एक्सेप्ट कर लिया था। सी हॉलीडे ब्रॉट अ सैड स्माइल टू द मदर्स फेस, जो सी हॉलीडे की पिक को देखकर उसकी माँ के चेहरे पर एक सैड स्माइल आ जाती थी, क्योंकि सी कुड नॉट रिलीव इट, वो चाहे भी तो वो उस सिचुएशन को फिर से रिलीव नहीं कर सकती। बट सी वॉज ग्लैड, कि खुश थी कि चलो कभी तो उसने वो दिन एंजॉय किया। और एंड सेम वे हियर द अदर साइड,
जो पोइट थी, तो पोइट भी जब उसकी माँ थी और जब उस फ़ोटो को देखकर वो खुश होती थी, तो पोइट उस टाइम को एंजॉय करती हैं और याद करती हैं, तो उनके चेहरे पर भी एक सैड स्माइल आ जाती है। तो बोथ मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट to overcome their sense of loss. As we know कि past cannot be brought back. It is a fact कि what is gone forever. Past cannot be brought back. हमारा जो past है वो हम वापस नहीं ला सकते. We will have to compromise with it. We will have to accept this. The loss of holiday या the loss of laughter, ये सब परमानेंट है, और बिकॉज दीज थिंग्स हैव टू बी एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ लाइफ, दे कैन नॉट बी ब्रॉट बैक और रिलेट, सो देयर विल ऑलवेज बी सम डिफ़िकल्टी इन लेटिंग देम गो कम्प्लीटली। ये यादें व्यक्ति को परेशान करती रहती हैं। तो बोथ मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू ओवरकम देयर सेंस ऑफ लॉस। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. In this stanza, the poet finally reveals that her mother has been dead for about 12 years. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. मतलब इस फोटो में जितनी उसकी माँ की एज थी उतना ही टाइम उसकी माँ को डेथ को हो गया है। द गर्ल इन द फोटोग्राफ सीम्स सो फार अवे, हैंस द रेफरेंस टू दैट गर्ल, क्योंकि उसकी माँ को बहुत टाइम हो गया है उनकी डेथ को, तो इसीलिए यहाँ पर उसने पोइट ने दैट वर्ड का यूज़ किया है। And of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. The word circumstance refers to the death of poet's mother. जो लगभग 12 years पहले हो चुकी है। तो death and of the circumstances there is nothing to say at all. Its silence silences. तो poet now will never hear her mother's laughter. अब उसकी अपनी माँ की हंसी नहीं सुन सकती। And the silence of the whole situation silences the poet and leaves her quiet. इस circumstance की, situation की जो silence है उसने poet को भी silent कर दिया है, और पोइट हैज़ बिकम सो साइलेंट कि वो चाहती है, वो अपने दुख के बारे में लिखने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन अपने दुख को एक्सप्रेस करने के लिए उनके पास कोई वर्ड्स नहीं होते। नाउ वी सी पोइटिक डिवाइसेस कि इस पोइम में कौन कौन सी पोइटिक डिवाइसेस यूज़ की गई हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं एल्यूज़न। एल्यूज़न क्या है? एल्यूज़न इज़ अ रेफरेंस और इंसिडेंशियल मेंशन ऑफ समथिंग। यहाँ पर जो कार्डबोर्ड है वो एक एल्यूज़न रिप्रेजेंट करता है। कार्डबोर्ड विद द फोटोग्राफ शोज द ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ ह्यूमंस। तो यहाँ पर जो कार्डबोर्ड का रेफरेंस दिया गया है वो ह्यूमन लाइफ की इम्परमानेंस को शो करने के लिए किया गया है। Next we see alliteration. Alliteration, figure of speech, the repetition of usually initial consonant sounds in two or more neighboring words or syllables. Examples of alliteration is in this poem are stood still, to smile, terribly, transient, its silence, silences, etc. We can see in the poem.
My mother, M consonant is repeated in 2 consecutive words, and stood still to smile, S, there is repetition of S consonant there, and terribly, there terribly transient. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं alliteration in the next few lines. Silence, silences, S is repeated. Now we see the next figure of speech, oxymoron. In this literary device, there are 2 opposite ideas that are joined to create an effect. Labored is in this poem in an example of oxymoron. So labored meaning with great difficulty and ease means comfortably. Both words have opposite meanings, but here they are clubbed together. Here we see the expression labored is. Labored means that which takes a lot of effort, and each suggests effortlessness. क्योंकि यहाँ 2 अपोजिट आइडियाज़ एक साथ क्लब किए गए हैं, तो हियर इज़ द फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन. Through this expression, the poet wants to say that she and her mother had to struggle a lot to show that their loss was easy to bear. See the next figure of speech, personification. Personification फिगर ऑफ स्पीच तब यूज़ होती है जब नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को पोर्ट्रेट किया जाता है इस तरह से कि जैसे उनके पास भी ह्यूमन बींग्स की तरह एक्ट करने के लिए एबिलिटी है. जैसे अगर एक एग्जांपल है कि स्काई वीप्स, तो वी आर गिविंग द स्काई द एबिलिटी टू क्राई. दिस लाइन सर्कमस्टांस हैज़ बीन पर्सोनिफाइड. तो यहाँ पर हमारी फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि जो सर्कमस्टांस है, जो सिचुएशन है, उसको हमने कौन सी क्वालिटी दे दी? साइलेंस की. नेक्स्ट एंड लास्ट जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट इज़ व्हेन एन एडजेक्टिव यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब वन थिंग इज ट्रांसफर्ड टू अनदर. Transient feat is an example of the transferred epithet in the poem. It refers to the human feat, but it is used to describe the lack of permanence of human life. In these lines, we can see transferred epithet. इसको आप समझिए. Epithet means adjective. यहाँ पर जो ट्रांजिएंट वर्ड यूज़ हुआ है वो फीट को मॉडिफाई कर रहा है. फीट को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन एक्चुअली इसका जो यूज़ है ये लाइफ, ह्यूमन लाइफ को दिखाने के लिए किया गया है कि ह्यूमन लाइफ कैसी है, ट्रांजिएंट. तो वी कैन से कि ट्रांजिएंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस has been transferred to the word feet. मीन्स जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है हमारा वो कैसा है, ट्रांजिएंस है, वो टेम्पोररी है. और यहाँ पर जो हमारा फीट वर्ड यूज़ हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमन लाइफ को. तो नाउ वी कम टू द एंड ऑफ द पोएम.
or I hope you would have understood the poem very well. Thanks for watching the video.